Hello everyone. Today's topic is the Ailing planet, the green movement's role by Nani Palkhiwala. We are going to discuss its summary. आज जो है हम इस लेसन की समरी डिस्कस करेंगे अब बाय नैनी पालखीवाला। ये आपकी हॉर्न बिल बुक का लेसन 5 है एक्चुअली। सो लेट्स डिस्कस समरी. Actually, it is not a story. It is an article written by Naini Palkhiwala on 24th November 1994. जो ये एक स्टोरी नहीं है, ये 24 नवंबर 1994 में नैनी पालखीवाला द्वारा इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया एक आर्टिकल है. नैनी पालखीवाला was an Indian jurist and liberal economist. Basically, his ancestors were involved in the profession of making palkis, so he has attached Palkhiwala with his name. जो इनके ancestor थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, देवर he belongs to Persian family, जो है पारसी फैमिली, सॉरी नॉट पर्शियन, पारसी फैमिली, पारसी परिवार से संबंध रखते थे. एंड दे वर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पालकीस. इनके जो इंसेस्टर थे ये पालकी बनाते थे, तो इन्होंने अपने नाम के साथ जो है पालकी वाला अटैच किया है. पद्म विभूषण अवार्ड भी इनको मिला है. सो बिफोर डिस्कसिंग द समरी, let's take its keywords and we can say that important words. First is irrevocably. It means without change. अपरिवर्तनीय. होलिस्टिक, बिलीविंग दैट समथिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. ऐसा विश्वास करना कि कोई चीज़ अपने आप में पूर्ण है. सभी चीज़ों को एक इकाई के रूप में देखना, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इंडस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, प्लांट्स हो, इन्वायरमेंट हो, सभी को एक यूनिट मान के चलना. दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक. परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, किसी बात को समझना. वाइटल, रिलेटिंग टू लाइफ, जीवन से संबंधित. dawned, became clear, to came to understand, किसी बात का समझ में आना. called dawned, we say dawned. inter alia, among other things. among other thing means अन्य बातों के अतिरिक्त. enter alia. scorched, burning, झुलसा हुआ. felicitous, felicitous होता है happy, खुश. so as I already told, it is not a story. It is an article written in Indian Express on 24th November 1994. Here in this article he has taken the issues regarding declining health of earth, and these issues today also have a relevance. इन issues का आज भी जो है प्रासंगिक महत्व है. इसमें जो है हमारी अर्थ का जो स्वास्थ्य है, जो गिरता हुआ है, उसके बारे में बात की गई है और आज भी इनका रोल है. In this lesson, Naini Palkhiwala first talks about the green movement which started in 1972, and it has gripped imagination of people very completely and rapidly. In 1972, the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. We have shifted from a mechanistic view to a holistic and ecological view of the world, and this was as revolutionary as Copernicus has told in 16th century to the people that planets are revolving around the sun. So this thing, the we can say that green movement was so much successful and as revolutionary as the Copernicus has told about in 16th century about that planets are revolving around the sun. So the earth is treated as a living organism. It has its own metabolic needs. It has its own vital processes. Different symptoms reveal that the earth is in ailing condition, that is, earth is in very bad condition. We as good steward, means caretaker of the planet, have begun to realize our moral obligations, our moral responsibilities. ये जो इसके अंदर जो नैनी पालखीवाला बताते हैं, ये ग्रीन मूवमेंट की बात करते हैं. 1972 के अंदर ये शुरू हुई. इसने लोगों की कल्पना को पूरी तरह से जकड़ लिया, बहुत तेज़ी से, पूरी तरह से. और जो संसार की जो पहली जो है ग्रीन राष्ट्रीय स्तर पर जो है ग्रीन पार्टी है, जो न्यूजीलैंड के अंदर बनी और 1972 के अंदर.
तो इसमें जो लोगों का फोकस चेंज हो गया कहाँ से, मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। नो, मैकेनिस्टिक का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन what does mean mechanistic means process involving chemical and physical processes। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी हों और फिजिकल फिनोमेना भी हों, मतलब फिजिकल थिंग्स भी हों और केमिकल थिंग्स भी हों। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो हमारी जो what does mean here industrialization, due to industrialization that many when the industrialization began, they destroyed the environment, they cut the trees carelessly, and the its impact we can see today. So mechanistic means here industrialization. So to holistic, what does without caring environment, we can say that industrialization without caring environment, and holistic means कि हम जो हैं अपना जो वातावरण है, वातावरण के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट हैं, और हम अपने आप को और इंडस्ट्री को भी सभी को एक पार्ट मानकर चल रहे हैं। होलिस्टिक मीन पूर्ण, पूर्ण मीन्स कि इनको अलग अलग नहीं देख रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री के ऊपर ही जोर देख रहे हैं और प्लांट्स को हम सारे काट दें, नहीं, प्लांट्स भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इस जो प्लेनेट के ऊपर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी हमारे साथी हैं, वो भी हमारा एक पार्ट है, हमारा एनवायरनमेंट भी एक पार्ट है। तो हर जो सभी को हम एक संपूर्ण इकाई के रूप में देख रहे हैं। इसका मतलब होलिस्टिक ये है। एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड मीन्स कि जैसे प्लांट हुए, इन्वायरमेंट हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए, इनका सभी का एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट है। तो हम इस बात को भी अब कंसिडर करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना दी और अपने इन्वायरमेंट की केयर नहीं की। तो आज जो हमारा व्यू है मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू में बदल गया है। ये व्यू इतना ही क्रांतिकारी था जैसे कि कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में बताया था कि हम जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। अर्थ को एक जीता जागता जीवित प्राणी माना गया है। इसकी अपनी ही जो है उपापचयी नीड्स हैं, मेटाबॉलिक नीड्स हैं। मीन्स मेटाबॉलिक का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड को एनर्जी में बदला जाता है। तो अर्थ की अपनी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं। इसकी इट हैज़ वाइटल, जीवन संबंधी इसके अपने लक्षण होते हैं। लेकिन अर्थ के जितने भी लक्षण हैं ये बताते हैं कि अर्थ की जो है बीमार स्थिति में है अर्थ। हम एक अच्छे इसके केयर टेकर होने के नाते इसके जो है हमने जो है अब अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझना शुरू कर दिया है। सो इन दिस लेसन ए टॉक ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज डन। एक जो है बात करते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, विच स्टार्टेड इन 1987, जो 1987 में शुरू हुई। एंड वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है इट वी कैन से दैट इट प्रोपोंडेड दिस आइडिया। जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया जो है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट ने जो है इसका प्रतिपादन किया। ये क्या कहता है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। इसका मतलब ये है कि जो विकास है, अगर हम अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं से हम समझौता करें। मतलब ऐसा नहीं है हम सभी प्राकृतिक संसाधनों का अपने लिए प्रयोग कर लें, हमें वो प्राकृतिक संसाधन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रखने हैं। इट मीन्स दैट वी शुड मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी हैं उनके भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट you are watching in this image here, earth and in this it is a symbolic image of sustainable development, and also here is a pic where you can see the concept of sustainable development means कि sustainable development का मतलब जो है लगातार होने वाला बनाए जाए रखने वाला विकास। कैसे लगातार बनाए जाए रखने वाला विकास, मीन्स ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपना जो है इन्वायरमेंट को या अपने जो प्लांट्स हैं उनको हम
हमने कट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप पिक है, इस पिक के अंदर देख सकते हैं वन साइड देयर इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आल्सो हियर सोलर पैनल्स आर आल्सो इन द पिक्स। इट मीन्स कि दे आर यूजिंग सन्स एनर्जी एंड दे आर नॉट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, है ना, for creating electricity etc. And also there are lot of plants, so all these things can go side by side. This is what we can say sustainable development. Sustainable development का मतलब सतत बनाए जाए रखने वाला विकास, ऐसा विकास जिसमें इंडस्ट्री भी हो लेकिन हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कम ना हो बल्कि हम उनको बढ़ाएं। जैसे हम पेड़ काटे ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, सब कुछ जो साथ में चले ताकि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी जो सुरक्षित रहे। So in this lesson the writer has told us about the zoo at Lusaka at Zambia. हमें जो है एक जू है लुजाका के अंदर, जाम्बिया के अंदर बताया गया है। And in the zoo there is a cage there is a cage and also there a notice there is also a notice written on this cage. इस जो है इस केज के ऊपर जो है एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। एंड व्हाट डज द नोटिस रीड्स? इट रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। इसके ऊपर लिखा हुआ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, बट व्हेन वी सी इनसाइड द केज, जब हम केज के इनसाइड देखते हैं, देयर इज नो एनिमल, वहाँ पे कोई एनिमल नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन्स? देयर इज ए मिरर, वी आर देयर इज ओनली ए मिरर, सो वहाँ पे ओनली मिरर है। वी आर वन वेयर वी कैन सी वन सेल्फ, वहाँ पे जो है हम अपने आप को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वी आर लिखा है, ये वी आर नहीं आएगा, यहाँ पे वेयर आएगा, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे वेयर आएगा। देयर इज ओनली ए मिरर वेयर वन कैन सी वन सेल्फ, वहाँ पे एक मिरर है जहाँ पे हम अपने आप को देख सकते हैं, वेयर आएगा यहाँ पे। इट मेक्स वन रियलाइज दैट वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नन बट मैन हिमसेल्फ। इससे हमें ये पता चलता है संसार का सबसे खतरनाक जो आदमी है वो जो है वो और कोई नहीं बट आदमी ही है। सो there has been efforts of number of agencies due to great efforts of number of agencies, बहुत सारी एजेंसी हैं जिन्होंने ये प्रयास किए। now we have awareness about our environments, उनके efforts के परिणाम स्वरूप आज हमें हमारे environment के प्रति हमारे अंदर awareness जाग चुकी है। now a man has started realizing about the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। अब हमने जो है एक आदमी ने उस सिस्टम को समझना शुरू कर दिया है जो एक प्रभुत्व वाले सिस्टम को छोड़कर एक भागीदारी वाले सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया है। मीन्स प्रभुत्व वाला क्या है कि ऐसा नहीं है, जितने भी ये प्लांट्स हैं या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम ये नहीं मान सकते कि ये हमारे हैं। तो हमारा जो एक सिस्टम है, हमें एक पार्टनरशिप वाला सिस्टम अपनाना होगा। इस प्लेनेट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको अपना एक पार्ट मान के चलना पड़ेगा, तभी ये जो प्लानट है सस्टेन रहेगा। इवन इसमें इस दिस लेसन इट हैज़ टोल्ड अबाउट देयर आर 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज एंड स्टिल देयर आर अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। इस लेसन के अंदर जहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं और कुछ ऐसे लिविंग स्पीसीज हैं जिनकी अभी सूची भी नहीं बनी है। तो हियर राइटर वांट्स टू टेल अस दैट वी शुड टेक दोज लिविंग स्पीसीज एज आवर पार्ट, हमें इन सभी लिविंग स्पीसीज को अपना एक हिस्सा मानकर चलना होगा। So here is the symbolic pic that one is watching inside the cage. What one finds there, only his image. And it what does it mean? That most dangerous animal is none but man himself। इसका मतलब ये है कि संसार के अंदर सबसे खतरनाक आदमी और कोई नहीं है, आदमी ही है। Then in this lesson the writer has told us about the branded commission. It was an international commission. It chiefly dealt with the question of ecology and environment. There was one important Indian member, Mr. Alkeja। इसमें एक इंडियन मेंबर थे जिनका नाम Alkeja था। And in the first branded report a serious question was raised। फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट में एक सीरियस क्वेश्चन उठाया गया था। What was that question?
or we leave to our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment. क्या हम जो हैं अपने जो हैं उत्तराधिकारियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए एक झुलसा हुआ जो ग्रह छोड़ के जा रहे हैं, जो मरुस्थलों में बदल रहा है, जहाँ एक दरिद्र प्राकृतिक दृश्यों में बदल रहा है, और वो एक बीमार जो है इन्वायरमेंट हम देने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन वहाँ पे रेज किया गया है। सो यू कैन सी दैट डेजर्ट ए बैरन लैंड, तो एक जो यहाँ पे सिंबॉलिक है, क्या हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इस तरह का जो हम कोई डेजर्ट जो है एडवांसिंग डेजर्ट छोड़ के जा रहे हैं। इट मीन्स शैल वी लीव द अर्थ इन सच एन एलिंग कंडीशन टू द जनरेशन टू कम। इसका मतलब क्या हम अर्थ को इतनी बीमार स्थिति में आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। द अर्थ हैज़ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, अर्थ के अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वी आर मेकिंग द यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज मोर देन आवर नीड्स, हम इन रिसोर्सेज का जो यूज़ है अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा कर रहे हैं। इज इट जस्टिफाइड, क्या ये जस्टिफाइड है। द ऑथर मीन्स टू से दैट वी शुड मेक द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जहाँ भी ऑथर के कहने का मतलब है हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि अपनी जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनकी नीड को भी ध्यान में रखना चाहिए। देन मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन has written on his book The Global Economic Prospect. What he has written on his book The Global Economic Prospect, he has told us what he has told. The earth has its four principal biological systems. They are fisheries, forest, grasslands and croplands. They are the foundation of the world's economic system. They supply us food and raw material to the industries. Then we can say that human claims on this system have reached at unsustainable level. The increasing population has depleted the earth in different ways. The forests are disappearing day by day. Grasslands are changing into barren wastelands. The croplands are deteriorating. Overfishing has become very common due to hunger of protein. As man wants more and more protein, so overfishing has become common. Forests are being cut to have firewood. जो जंगल, तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने अपनी एक किताब जो है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में कहा है कि अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, जिन फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स। ये हमारे आर्थिक व्यवस्था के आधार बनाते हैं, ये हमें भोजन प्रदान करते हैं और कच्चा मटेरियल देते हैं इंडस्ट्री के लिए। आदमी का जो दावा है इस तरह की सिस्टम के ऊपर अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच गया है। मीन्स कि ऐसा लेवल तक पहुंच गया है कि हम जो हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं। इतनी बुरी हद तक हमने जो है अपने जो है इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा दी है। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसने जो है अर्थ को अलग अलग तरीक़ों से अर्थ का जो है इसको अर्थ की डिप्लीशन कर दी है, अर्थ का ह्रास कर दिया है। जंगल दिन प्रतिदिन जो हैं विलुप्त होते जा रहे हैं। घास के मैदान बंजर के मैदानों में बदलते जा रहे हैं। जितने भी फसल के क्षेत्र हैं वो भी जो हैं डिट्यूरेट हो रहे हैं, उनका भी क्षय हो रहा है, उनकी भी हानि हो रही है। मानव जाति के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की भूख ने मछलियाँ जो हैं हम हद से ज़्यादा पकड़नी शुरू कर दी हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे फॉरेस्ट जो है सी के अंदर जो लाइफ है वो भी प्रभावित हो जाएगी। जंगलों को हम काट रहे हैं जलाने वाली लकड़ी के लिए। तो here you can see that the grasslands, here the beautiful picture of grassland है ना, but what we are doing, we are destroying our grasslands, हम अपने grasslands को destroy कर रहे हैं। then you can see also see cropland है ना, there is also cropland, but here what we read that croplands are deteriorating by day, croplands deteriorate हो रहे हैं। here is the also peak of fisheries, what due to hunger of more and more protein we are also destroying fisheries, some fisheries को भी destroy कर रहे हैं। and here is the peak of forest due to need of firewood and due to industrialization or due to urbanizations, or we can say that due to building constructions we are destroying, we are cutting trees recklessly, हम जो है trees को भी recklessly cut कर रहे हैं। here you can say that how we are cutting trees recklessly, and this is also peak a man cutting tree।
The firewood has become so expensive. Here writer tell us that firewood जो है इतना expensive बन गया है that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. कहते हैं जो मान लो एक हमने जो पोट है, एक जो बर्तन है जो हमने एक चूल्हे के ऊपर रखा है, बर्तन के अंदर जो पक रहा है वो इतना कीमती नहीं होता है जितना बर्तन के नीचे जलने वाली लकड़ी है. Here Dr. Mears tell us that Dr. Mears what to tell us is that tropical forest is powerhouse of evolution. Now what is the tropical forest? It is the 23 north of the equator and 23 degree south of the equator. भूमध्य रेखा के 23 डिग्री नॉर्थ जाएंगे, भूमध्य रेखा से 23 डिग्री साउथ जाएंगे. तो जो भूमध्य रेखा से ये वाला जो एरिया है इसको हम उष्ण कटिबंधीय जंगल कहते हैं. एंड डॉक्टर मेयर इसको कहते हैं कि ये हमारे अस्तित्व का पावर हाउस हैं. बट इज हैपनिंग देयर, सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट. जैसे कि जंगल विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारी जो है जंगली जीव जंतु की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं. So you can see the peak of here tiger and also a deer. But now these are only on the paintings and several we can say that species of wildlife have become extinct, विलुप्त हो गए हैं. Now tropical forests are eroding at the rate 40 to 50 million acres a year. ये 40 से 50 मिलियन एकड़ एक वर्ष में जो हैं ख़त्म हो रहे हैं, eroding हो रहे हैं, जो है destroy हो रहे हैं, finish हो रही हैं. The growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. जो बहुत सारे जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं वो गोबर का यूज़ करते हैं जलाने के लिए. इससे जो है हम मिट्टी को एक नेचुरल खाद से वंचित कर देते हैं. द वर्ल्ड बैंक हैज़ टोल्ड व्हाट वर्ल्ड बैंक हैज़ टोल्ड दैट देयर इज 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड. तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, वो कहता है कि हमें जो है आने वाले जो ईंधन की लकड़ी है उसकी मांग को पूरा करने के लिए हमें 5 गुना पौधे लगाने की आवश्यकता है. जेम्स पिथ आल्सो ए प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट has said what he has said, we are saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and half to a second. ये जो है कि हम जो ऐसा कहा जाता है कि हम जो है अपना जंगल जो है 1 सेकंड के अंदर 1 एकड़ खो रहे हैं, परंतु वो कहता है ऐसा नहीं है, हम जो है 1 सेकंड के अंदर 1.5 एकड़ जो जंगल खो रहे हैं. Also, Article 40A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. संविधान की धारा 48A में भी कहा गया है भारतीय संविधान की कि जो राज्य है वो एक प्रयत्न करेगा प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इन्वायरमेंट को और इसको सुरक्षित रखने के लिए जंगलों को और जंगली लाइफ को देश के अंदर. लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, there are elaborate laws and legal provisions in India for the protection of environment and nature, but these laws are never respected nor enforced in India. We never practice what we preach. The forest department really bothers. Here written is brothers, not brothers. It means bothers. You have to correct it. Bothers, bothers. So you have to write is bothers. So the forest department really bothers about cutting of trees and safety of wild animals. जो forest department, the Constitution of India says that casteism, untouchability, bonded labor shall be abolished. But these evils are flourishing shamelessly. Those who are more powerful consider their status to disobey the laws. So it is true that laws are not strictly implemented in India. जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कानून हैं, लीगल प्रोविजन हैं भारत के अंदर जो है इन्वायरमेंट की और नेचर की प्रोटेक्शन के लिए, परंतु ये लॉस पेपर के अंदर ही हैं, इनका ना तो आदर किया जाता है ना इनको ढंग से लागू किया जाता है. हम कभी भी उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते जिसका हम उपदेश देते हैं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ी मुश्किल से ही इस बात की चिंता करता है कि पेड़ काटे जा रहे हैं या जंगली जीव जंतु की सुरक्षा की चिंता है. भारत की संविधान ये कहता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल है
दैट लॉस आर नॉट रिस्पेक्टेड एंड नॉट इन्फोर्स्ड इन इंडिया। जी इसकी एग्जांपल है, भारतीय संविधान क्या कहता है कि कास्ट जातिवाद, छुआछूत और जो बंधुआ मजदूरी है ये खत्म होनी चाहिए, परंतु फिर भी ये जो है इवल्स ये बढ़ रही हैं शेमलेसली। जो सत्ता में लोग होते हैं वो अपना एक स्टेटस सिंबल समझते हैं कानूनों का उल्लंघन करना। सो वी कैन से दैट लॉस आर नॉट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने जो है ट्रैफिक के लिए बहुत सारे रूल बनाए हैं, फिर भी जो यंगस्टर्स हैं दे डोंट फॉलो द रूल्स। वो अपना जो है बड़े बड़े जो अमीर घरों के बच्चे होते हैं वो अपना एक स्टेटस सिंबल समझते हैं टू ब्रेक द लॉ को तोड़ना। सो let's in India it is told that a loss of forest is 3.8 million acre a year, but it is a government statistics। भारत में ये बताया गया है कि एक वर्ष में 3.8 मिलियन एकड़ जो जंगलों का लॉस हो रहा है, बट एक्चुअल लॉस इज 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टेटिक्स। बट एक्चुअल जो लॉस है वो कहते हैं 8 गुना है जो सरकारी आंकड़े हैं जी, 3.8 मिलियन नहीं है। अब ये लॉस वाई दिस लॉस is increasing, ये लॉस क्यों हो रहा है? Only one factor is responsible, that is population explosion. The growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. As the earth has limited natural resources, the increasing population is causing extra pressure on the biological systems of the earth. The forests are disappearing day by day, grasslands are changing into barren wastelands, the croplands are deteriorating, overfishing has become very common, forests are being cut to have firewood, the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. बढ़ती हुई जनसंख्या जो है एक सबसे बड़ा कारण है आने वाले जो फ्यूचर जो है ह्यूमन सोसाइटी का फ्यूचर बिगाड़ने के लिए। जैसा कि अर्थ के सीमित संसाधन हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रही है। जंगल दिन प्रतिदिन डिसअपियर हो रहे हैं, ग्रास लैंड्स बैरन बेसलैंड्स में बदल रहे हैं, क्रॉप लैंड्स का भी डिट्यूरेट हो रहे हैं, और ओवर फिशिंग ड्यू टू हंगर और प्रोटीन की भूख के कारण बढ़ गई है। फॉरेस्टों को जो जंगल को काटा जा रहा है फायरवुड के लिए, और जो हम डंग गोबर का यूज़ कर रहे हैं विलेजेस के अंदर, इससे जो है सॉइल एक नेचुरल फर्टिलाइजर से वंचित हो रही है। Here you can see a peak, a planet. There are number of people. It is the symbolic peak of population explosion. Poverty and illiteracy are the main causes of increasing population. More children do not mean more workers, but it means more people without work. Development is the best contraceptive. As a result of the development, human fertility falls as income rise, education spreads, and health improves. We cannot protect our environment without controlling our population. The strong and effective measures must be taken to control the population. गरीबी और अनपढ़ता जो है ये मेन कारण है जनसंख्या बढ़ने का। ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा काम करने वाले हों, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग बिना काम के होंगे, ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे। जो विकास ही है यही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। जैसे कि डेवलपमेंट से क्या होता है, फर्टिलिटी मीन्स पॉपुलेशन। डेवलपमेंट होने से जो पॉपुलेशन है जी गिर जाती है क्योंकि इनकम का स्तर बढ़ जाता है, एजुकेशन फैलती है और इससे हेल्थ इंप्रूव होती है। वी कैनॉट प्रोटेक्ट अवर, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल नहीं करते हैं। हमें जो है बड़े स्ट्रॉन्ग जो है मेयर अपनाने पड़ेंगे इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर एवरीडे लाइफ। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, द अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, वी आर आल्सो मेकिंग यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज मोर देन आवर नीड्स। एज ए रिजल्ट वी फील द स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, द प्रॉब्लम ऑफ शेल्टर, फ्यूल एंड फूड। जो प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन की है इससे हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन प्रभावित हो रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन है बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, जो धरती के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम इन रिसोर्सेज का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं जितना अपनी आवश्यकता से ज़्यादा। इससे क्या होगा, हमारे जो है ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो रही है, शेल्टर रहने के लिए मकान बनाने की कमी हो रही है, ईंधन की लकड़ी की कमी हो रही है और फूड की कमी भी हो रही है। नाउ देयर इज ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न अबाउट द सर्वाइवल
नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। अब एक बढ़ती हुई चिंता हो गई है कि लोगों की ही सर्वाइवल की चिंता नहीं करनी है, परंतु हमारा जो पूरा प्लैनेट है वो भी खतरे में पड़ गया है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। नाउ वी शुड अडॉप्ट होलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें इस संसार को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना पड़ेगा। होलिस्टिक मीन्स कि सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, अपने एनवायरनमेंट को एक इकाई मानकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम टोटल इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देंगे, सभी चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइस, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। एनवायरनमेंट के अंदर जो आज समस्या है ये संकेत नहीं दे रही है कि हमारी मृत्यु का, लेकिन ये हमारे भविष्य का भी जो है पासपोर्ट है। सो नाउ देयर एन इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टार्टेड। आज जो है एक जिम्मेवारी का युग शुरू हो गया है। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसोशिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। डिसोशिएटेड होता है अलग अलग हिस्सों में देखना। आज जो है हमने इस संसार को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखना शुरू कर दिया है, मतलब सभी पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनवायरनमेंट को एक इकाई के रूप में देखना शुरू कर दिया है। एन इकोलॉजिकल व्यू मतलब हमने समझ लिया है कि पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, एनवायरनमेंट का एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव है। अब हम पूरे जो संसार को एकीकृत इकाई के रूप में देखते हैं, ना कि अलग अलग हिस्से के रूप में देखते हैं। सो रोल ऑफ इंडस्ट्री इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इट इज टोल्ड इन द एंड ऑफ द लेसन। मिस्टर एडगर एस बुलार्ड हु वाज द चेयरमैन ऑफ डुपॉन्ट, ये मिस्टर एडगर एस बुलार्ड जो चेयरमैन थे डुपॉन्ट के, उसने अपने आप को ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। उसने अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर किया है। ही सेड our continued existence as leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। उसने अपने आप को 5 वर्ष के लिए एनवायरमेंटल जो है चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर करते हैं। वो क्या कहते हैं, हमारी जो लगातार एग्जिस्टेंस है, वर्चस्व है, ये एक जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर होने के लिए इसमें ज़रूरी है कि हम जो हैं अपने जो पर्यावरण की परफॉर्मेंस है इसमें भी हम श्रेष्ठ हों, इसमें भी हम आगे निकलें। सो इंडस्ट्रीज ने भी इस बात को समझना शुरू कर दिया है। एंड मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने जो प्राइम मिनिस्टरशिप की जो ईयर थे उन्होंने भी जो है मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के ईयर के दौरान उसने भी कमेंट किया है। बट शी हैज़ कमेंटेड नो जनरेशन हैज़ फ्री होल्ड ऑन इट्स अर्थ, ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेसी विद फुल रिपेयरिंग लीज। किसी भी जनरेशन का इस अर्थ के ऊपर उन्मुक्त अधिकार नहीं है, अपनी संपत्ति नहीं समझना है। जितना भी है ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी, हम एक जहाँ पे किराएदार के रूप में हैं, जहाँ पे जो हमारा जीवन है हमें एक किराएदार के रूप में मिला है। विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, हमने आने वाली पीढ़ियों को इसको पूरा जो इन्वायरमेंट को एक रिपेयर के रूप में इसको एक सही अवस्था में सौंपना है वापस। इसका मीनिंग ये निकलता है। नेक्स्ट देखिए, Mr. Lester Brown also has commented at the end of lesson, we have not inherited this earth from our forefathers, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने इस अर्थ को अपने जो है बुजुर्गों से उधार नहीं लिया है, हमने बल्कि इसको अपने बच्चों से उधार लिया है। दिस आर द आवर फ्यूचर ऑफ जनरेशन, हमने इन बच्चों से उधार लिया है। इट मीन्स दैट अर्थ इज नॉट आवर पर्सनल प्रॉपर्टी, वी डू नॉट हैव फ्री होल्ड ऑन इट, वी हैव नॉट इनहेरिटेड इट आवर फ्रॉम फोर फादर्स, इट इज ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ह्यूमन रेस, इट इज नेचर्स गिफ्ट टू अस, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, वी हैव टू गिव इट बैक टू देम। इट मीन्स इफ वी कट डाउन ट्रीज for our use, we should plant new trees to replace them, we should not make the misuse of natural resources, we should keep in mind the needs of the future generations, we must use natural resources wisely, we must adopt sustainable development। इसका मतलब ये है कि अर्थ हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा इसके ऊपर उन्मुक्त अधिकार नहीं है, हमने इसको अपने बुजुर्गों से इनहेरिट अधिकार में प्राप्त नहीं किया है, ये हमारी जो है कॉमन प्रॉपर्टी है पूरी मानव जाति की, ये नेचर की हमें गिफ्ट है, हमने इसको अपने बच्चों से उधार लिया है और हमें अपने बच्चों को ही इसको वापस करना होगा। इसका मतलब ये है अगर हम अपने यूज़ के लिए ट्रीज़ को कट करते हैं, हमें नए ट्रीज़ जो हैं लगाने होंगे, उनको रिप्लेस करने के लिए भी हमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज का जो है मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें अपने माइंड में फ्यूचर जनरेशन्स की जो है नीड्स उनको भी ध्यान में रखना होगा और इसलिए हमें जो है प्राकृतिक संसाधन है उनका बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना होगा। हमें सतत
विकास के मॉडल को अपनाना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हम ऐसा नहीं है कि वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे प्राकृतिक संसाधनों को ही ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं, हमें अपनी फ्यूचर की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन छोड़ने हैं। और मान लो जितने हमने संसाधनों की कमी की है, जितने हमने प्लांट्स कट किए हैं, हमें उतने ही प्लांट्स हमें लगाने भी होंगे, ताकि उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं, वो सुरक्षित भविष्य में रहें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। हैव ए नाइस डे।